Hello everyone, welcome to our YouTube channel 21 Academy. Today we are discussing about class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. In the earlier part we do two periods of the chapter 10, period 1 and period 2. If you not seen these videos, I provide the link in the description. So today we are starting the period 3 of the chapter 10 light reflection and refraction. If you not subscribe our channel 21 Academy, if you want to get more educational videos, you have to subscribe our channel by pressing on this icon. Let's start our today topic. Today we are discussing about the rule for image formation by the convex lens. So rule number 1, ray of light parallel to principal axis passes through the focus located on the same side of the lens. This is the principal axis, this is the focus, and this is the focus 2, f2. This is called focus f1, this is focus f2. This is the ray of light which is parallel to principal axis. This ray passes through the lens. When this ray passes through the lens, got refraction. After the refraction, the rays passes through the focus located on the same side of the lens. एक किरण जो कि समानांतर है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये किरण क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस से पास होती है, लेंस से पास होती है तो इसका रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट उसी फोकस से गुजरती है जो लेंस की सेम साइड में है। ये रहा फोकस एफ, तो यहां से ये पास होगी। तो ये है आपका रूल नंबर 1। A ray of light appear to meet the focus will become parallel to principal axis. This is the ray of light. Principal axis passes through the lens and become parallel to the principal axis. एक रे ऑफ लाइट को हम जब लेंस से पास करते हैं, लेंस से पास करने के बाद उसका रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद वो रे है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। हमें ऐसा लगता है कि फोकस F2 से पास होगी, लेकिन ऐसा एक्चुअलिटी में नहीं होता है। जो ये रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज द रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, the ray of light passes through the optical center will emerge without any deviation. When ray of light passes through the optical center O will emerge without a deviation. There is no change in the deviation of ray of light. When the ray passes through the optical center O will emerge without any deviation. तो जो रे होगी उसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, वो एज इट इज उस ऑप्टिकल सेंटर लेंस से पास हो जाएगी। After discussing about the rules, now we discuss ray diagram of the image formation by the convex lens. अब जो convex lens के द्वारा जो ray diagrams बनते हैं उनकी image formation कैसे होती है। तो first point, when position of the object at the infinity, when the position of the object at infinity. Now we take the object at the infinity. This is the principal axis. ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से दो रे ऑफ लाइट आती हैं, रे ऑफ लाइट लेंस से पास होंगी, लेंस से पास होने के बाद इनका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और हमने रूल में पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद वो उसी दिशा में स्थित फोकस पर आकर मिलती है। तो ये आपकी इसी फोकस पर आकर मिलेगी, ना कि जो यहाँ पर हमारा फोकस होता है F2 उस पर जाकर मिलेगी। तो जो लेंस की दिशा में जो फोकस होगा उसी पर जाकर मिल जाती है फोकस F1। तो ये रे भी यहाँ पर आकर मिल जाती है, ये रे भी यहाँ पर मिल जाती है। When two or more rays are intersect each other, where the formation of object, where the formation of image। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक रेज आपकी आकर मिल जाती हैं उस बिंदु पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये रेज भी यहाँ पर आकर मिली है, ये रे भी यहाँ पर आकर मिलती है। तो पोजीशन कहाँ पर है उसकी F1 पर।
पोजीशन कहाँ है, F1 पर। साइज ऑफ द इमेज, अब जो साइज होगा इमेज का वो कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। जो साइज है इमेज का वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, एक पॉइंट साइज होगा, एक बिंदु के आकार का। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अब जो हमें इमेज प्राप्त होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट, मतलब कि सीधी प्राप्त होगी। कॉन ऑफ द लेंस when position of the object between infinity and the optical center O of the lens। अब हम पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उसको इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में लेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब इस तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे तो आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इन्फिनिटी का पॉइंट होगा। तो इस दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है। ऑब्जेक्ट से हमने लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसी दिशा में स्थित फोकस से होकर पास होती है। और सेकंड रे है आपके पास जो कि ऑप्टिकल रे, ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास होती है। जब ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास होगी उसके अंदर कोई भी डेविएशन, कोई भी चेंज नहीं आता है। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों रेज कहाँ पर आकर मिलती हैं। ये रेज आपकी यहाँ आती है रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये यहाँ है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर ए है, तो दोनों इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। इस पॉइंट पर आकर दोनों रेज मिल गई तो वहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं होगी, वहाँ पर इमेज की पोजीशन होगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, अब कोई एक पोजीशन डिफाइन नहीं है तो ये किसके बीच में है, ये हमारे पास इसका नियरेस्ट पॉइंट है F और इसका नियरेस्ट पॉइंट है O। तो इन दोनों के बीच में होगी बिटवीन फोकस F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर O। साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड होता है। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश मतलब कि बहुत छोटा, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है। तो इन दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है, मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपैरिजन में जो हमें इमेज फॉर्म होगी उसका साइज छोटा होगा।